ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ہماری عزت و ذلت، ہماری امیری اور غریبی، ہماری بیماری اور شفایابی، ہماری موت و زندگی، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ ازل سے ہے، اب تک قائم رہے گا. ہماری عبادت کی تمام تر قسموں کا مستحق وہی ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، امام اعظم ہے، حکیم الامت ہے، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں بھی جو سب سے اہم عشرہ ہے، اخیر عشرہ، ایک دو دن میں ہم اس عشرے میں داخل ہوں گے یا وہ عشرہ آ جائے گا. الگ الگ دن عشروں میں بیان کیا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ اس کا ہے رحمت کا، تو مغفرت کا، اس طرح کر کے اس طرح کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. 3 عشرے کے الگ، لیکن اخیر عشرے کی فضیلت کے تعلق سے ہے. اور تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت عائشہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد بئزرہ. جب آخر عشرہ داخل ہوتا ہے رمضان المبارک کا، تو اللہ کے رسول شب بیداری شروع کر دیتے ہیں، راتوں کو جاگتے، گھر والوں کو جگاتے، کمر کس لیتے. حالانکہ پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخیر عشرہ کتنا محبوب ہے کہ اس مہینے کا ہر لمحہ ایمان و احتساب کے لیے ہے، لیکن اس میں بھی اخیر عشرہ کا اور زیادہ اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دی شب قدر کی وجہ سے. اور اس اخیر عشرے میں حضرت عائشہ کی دوسری حدیث ہے کہ جتنی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں کرتے اور عشرے میں نہیں کرتے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر اواخر ما لا یجتہد فی غیر. جتنی عبادت، جتنی کوشش نہیں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عشرے میں کرتے تھے، اور دوسرے عشرے میں اس کا اہتمام کم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی بہت ہوتا تھا، اس میں بھی کم نہیں ہوتا تھا عام مہینوں کے مقابلے میں. تو یہ مبارک مہینہ ہر لمحہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کو سمیٹے ہوئے ہے. یہ اخیر عشرہ اور زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس اخیر عشرے کی فضیلت کو پانے کے لیے، اس کا صحیح سے استعمال کرنے کے لیے ایک بہترین شکل جو اسلام میں ہے، شریعت میں ہے، اعتکاف کی شکل. اس اخیر عشرے میں اعتکاف سب سے بہترین شکل ہے. اس اخیر عشرے کی اہمیت کو پانے کے لیے اور اس سے ہر وقت کو صحیح سے استعمال کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. ایک سال نہ کر سکے تو اس کی قضا کی، شوال میں اس کو رکھا. پہلے تو اللہ کے رسول پہلے عشرے میں کرتے تھے اعتکاف، پھر درمیانی کرنے لگے، درمیان میں کچھ دنوں تک کیا، صحابہ کرام بھی کرتے تھے. پھر آپ کو بتایا جائے کہ اخیر عشرے میں ہے، جو گھڑی آپ ڈھونڈ رہے ہیں شب قدر، وہ اخیر عشرے میں ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان کو پورا ہوتے ہی وہ اعتکاف سے چلے جاتے تھے، صحابہ کرام بھی چلے جاتے تھے. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ آپ اعتکاف ہٹایا نہیں، آپ نکلے نہیں. کہا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ مبارک گھڑی یہ اخیر عشرے میں ہے، اہم والی گھڑی. اب تم میں سے جو ہمارے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے کر لے. اب ہم اور 10 دن کا اعتکاف کریں گے، 20 دن کا اعتکاف کیا، ورنہ 10 سے 20 کر کے ہٹ جاتے تھے. 20 دن کا اعتکاف ہے جو بتا دیا گیا کہ اخیر عشرے میں ہے، بلکہ تعین کر دی گئی تھی. اللہ کے رسول نے کہا، صحیح حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے اس گھڑی کو یا اس رات کو تعین کر دی گئی تھی کہ کس رات میں شب قدر تھی، لیکن میں نکلا بتانے کے لیے، دیکھا تو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بس اس کی تعین بھلا دی گئی. اچھا شاید اس میں حکمت یہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بھلانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، حکمت ہے. یہ ہو میرے بندے زیادہ سے زیادہ اس رات کو پانے کے لیے عبادت کریں. ایک رات کو خاص کر دینا وہ کم عبادت اس میں ہو پاتی، تو اللہ کی حکمت رہی ہو. اب لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یا غلطیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی کبھی روک لی جاتی ہے یا ہٹا لی جاتی ہے. یہ بھی دو لوگ لڑ رہے تھے مسلمان، ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے بلا دی گئی. اعتکاف سب سے بہترین شکل ہے محاسبے کا، انسان کو وہ گھڑی پا لینے کا جو گھڑی سے آخری عشرے میں ہے. بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ اس گھڑی کو پالے، اس لیے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، جاگتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، جو کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں اعتکاف میں. عام لوگ بھی کریں، صرف اعتکاف والا نہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھے، مرد بھی عورت بھی اعتکاف بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. الگ سے اعتکاف کی کوئی فضیلت نہیں. کوئی یہ سمجھے کہ الگ سے اعتکاف میں بیٹھنے کی فضیلت نہیں، اس کے اعتکاف میں اعتکاف کی حالت میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی فضیلت ہے. حضرت ابو داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو داؤد نے امام احمد سے پوچھا، مغنی ابن قدامہ میں چیز موجود ہے، پوچھا حضرت امام احمد بن حنبل سے کہ آپ اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث آپ کو معلوم ہے؟ اعتکاف کی فضیلت کے تعلق سے کوئی حدیث ہے آپ کو معلوم؟ امام ابو داؤد نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا. امام احمد بن حنبل نے کہا کوئی حدیث مجھے معلوم نہیں سوائے صحیح حدیثوں پہ. اعتکاف کی فضیلت میں انہوں نے کہا جتنے حدیثیں مجھے معلوم ہے سب صحیح ہے، صحیح حدیث کوئی نہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ محض اعتکاف میں بیٹھ جانا یہ فضیلت کو پانے کے لیے کافی نہیں ہے، جیسے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا رویہ ہوتا ہے. وہ بس انہیں خوش فہمی میں رہتے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے، لیکن ان کے آداب و اطوار دیکھیں تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ بہت حساس ہیں یا بہت سنجیدہ ہے اپنے اس عمل کو لے کر کے، اپنے اس عظیم قربانی کو لے کر کے. جو آدمی 10 دنوں تک گھر والوں سے دور رہتا ہے، دنیا داری تو چھوڑیے، دین کے کاموں میں بھی حصہ نہیں لے سکتا، منع کیا گیا. نیک کاموں میں بھی حصہ نہیں لے سکتا، وہ باہر جو اعتکاف سے باہر اس سے عمل دخل میں آتا ہے اس میں حصہ نہیں لے سکتا. لیکن ہمارے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کے ایسا نہیں لگتا کہ حساس گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، ہنسی ٹھاکے اور وہ لایانی باتیں. عام حالت میں جو چیزیں جائز نہیں، رمضان میں اور زیادہ منع کیا گیا. اعتکاف کے لیے تو اور زیادہ ہے کہ لایانی چیزوں سے بچے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے بہترین اسلام کی پہچان یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. اور رمضان میں آدمی لایانی چیزیں کرے، وہ بھی اعتکاف کی حالت میں، تو پھر کہاں اس کی فضیلت؟ صرف محض اعتکاف میں بیٹھنا اس کی فضیلت کو پانے کے لیے کافی نہیں ہے. اعتکاف میں بیٹھ کر وہ ذکر و اذکار کرے، عبادات کرے، توبہ استغفار کرے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں انسان کے دل میں جو زنگ لگتی ہے 2 چیزوں کی وجہ سے لگتی ہے، ایک غفلت اور ایک گناہ کی وجہ سے. غفلت، اور ان دونوں چیزوں کے ازالے کے لیے سب سے بہترین شکل اعتکاف ہے. غفلت، ذکر و اذکار سے غفلت ہوتا ہے، آدمی ذکر و اذکار اللہ کا کرتا رہتا ہے، اس میں وہ غفلت بھی دور ہو جاتی ہے. اور استغفار کا موقع ملتا ہے اسے، جو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو، اس کو جس طرح سے کاٹنے کا حکم ہے کہ لوگوں سے کٹ کے، دنیا سے کٹ کے رہے، بہت ضروری چیز ہوتا ہے. حضرت عائشہ کہتے ہیں السنۃ علی الموتق لا اللہ یعود مریضا ولا یشهد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منه، کہ جو اعتکاف میں بیٹھے وہ نہ کسی مریض کی عیادت کر سکتا ہے، جبکہ مریض کی عیادت کرنا کار ثواب ہے، نہ مریض کی عیادت کر سکتا ہے، نہ جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، جس میں احد پہاڑ کی 1 قرات یا 2 قرات جس میں احد پہاڑ کے برابر کا ثواب ہے، اس میں بھی حاصل شریک نہیں ہو سکتا ہو، نہ جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، نہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، نہ اس سے مجامعت کر سکتا ہے. حالانکہ اگر آتی ہے گھر والے، گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر بیوی بھی آتی ہے تو وہاں تو بات چیت کر سکتا ہے، گھر میں چھوڑنے بھی جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صفیہ کو چھوڑنے گئے تھے، حضرت صفیہ آئی تھی ملنے کے لیے، کچھ دیر بات کی، اس کے بعد اللہ کے رسول اعتکاف سے نکل کر گھر تک چھوڑنے بھی گئے. اچھا کچھ 1-2 مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے دیکھ لیا تو ان کے شبہات کا بھی ازالہ کیا کہ دیکھو یہ تمہاری ماں ہے،
सफिया है, मुझसे आए थे मिलने के लिए, मैं वापस छोड़ने जा रहा हूँ। ताकि शैतान, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह की पनाह, आप ऐसा कैसे क्यों कह रहे हैं? कह रहे शैतान दिमाग में कुछ बात डाल सकता है, इसलिए मैंने वजाहत कर दी कि ये मेरी बीवी है, तुम्हारी माँ है, उनको छोड़ने जा रहा हूँ, रात के अंधेरे में तो पता नहीं क्या सोच लो, ये कहने का मकसद था। तो अगर कोई आए या कोई ना हो तो बात जा सकता है, मस्जिद मसाजिद वगैरह में, या बीमार बहुत ज्यादा हो गया तो दवा लेने के लिए जा सकता है, कोई ना तो बहुत सख्त जरूरत के तहत मस्जिद से बाहर निकल सकता है, मस्जिद से बाहर नहीं निकल सकता है। एतकाफ ही में रहे ज्यादा से ज्यादा, दौरान एतकाफ ज्यादा से ज्यादा जिक्र अस्कार करे, तिलावत करे, इबादत करे, खुद से वो मुहासबे का वक्त होता है, अल्लाह तबारक व तआला से बहुत करीब होता है आदमी, उस वक्त रब्त होता है, और खुद के मुहासबे का वक्त होता है। आप अंबिया की सीरत को देखिए, जितने भी अंबिया, अक्सर को आपको मिलेगा कि वो गोशे तन्हाई में, नबी बनाए जाने से पहले, ये एक उनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला पहले से रूहानी तरबियत और रब्बानी तरबियत होती है कि वो पहले से नबी बनाए जाने से पहले ही वो तन्हाई पसंद और गोशा नशीनी करते थे। वो अल्लाह के रसूल भी नबी बनाए जाने से पहले गार हिरा में बराबर जाते रहते थे। अकेले में इंसान गौर फिक्र करता है तो वो बहुत नतीजे तक पहुंच सकता है किसी दुनिया के मामले, अल्लाह के मामले में, अपने बारे में गौर फिक्र करने का, तो वो बहुत बेहतरीन वक्त होता है, बेहतरीन मौका होता है वो जो एतकाफ में इंसान बैठता है। तो एतकाफ ये सुन्नत है, इसको बाकी रखना चाहिए, औरत हो मर्द हो सबको बैठना चाहिए। और लेकिन मस्जिद ही में, जो लोग कहते हैं घरों में, कहीं सोच नहीं है कि घरों में कि साहबा ने घरों में एतकाफ किया हो या साहबियात ने किया हो, नहीं, अज़वाज मुतहरात ने भी किया। सही बुखारी के हदीस है कि अल्लाह के रसूल जब तक बहयात एतकाफ करते रहे, हालांकि आपके बाद इस सुन्नत को अज़वाज मुतहरात ने जिंदा रखा, मस्जिद में एतकाफ किया। कुरान में भी तुम आकिफूना फिल मसाजिद, जब तुम मस्जिदों में एतकाफ किए, वाला तुबाशिरुहुन्ना, तो ज्यादा मेल मिलाप मत रखो अपने घर वालों से, बीवियों से। तो मस्जिद ही में एतकाफ है, घरों में एतकाफ साबित नहीं है सुन्नत से, न साहबा से न साहबियात से। हाँ ये है कि जिन मसाजिद में औरतों के लिए एतकाफ का इंतजाम हो, वहां पर्दे का माकूल इंतजाम हो उनके लिए, ताकि वो इख्तिलाफ ना हो सके। जाहिर सी बात है मस्जिद में मर्द भी एतकाफ बैठेंगे, माशाल्लाह हमारे यहाँ तो इतना नाम लिखा दिया, माँ बहनों ने, खुशी होती है इनके जज्बे को देख करके, 14-16 नाम आ चुके, रोकना पड़ा कि अब नहीं, और मर्दों में तो बैठते ही हैं। तो एतकाफ सबसे बेहतरीन शक्ल है इस आखिरी अशरे की फजीलत को पाने के लिए, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और जो एतकाफ के तकाजे हैं उनको पूरा करना चाहिए। इस और आखिरी अशरे में की जो एक अहम चीज है वो है क़यामुल लैल। तरावी को भी क़यामुल लैल कहते हैं, लेकिन रात में क़याम, लंबा क़याम, लंबी नमाजें नवाफिल वो क़यामुल लैल में आ जाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी को जो क़यामुल लैल का नाम दिया जाता है, लंबी नमाजें पढ़ना क़यामुल लैल होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ाई थी 23वीं रात को और 25वीं रात को, 27वीं रात को, बड़ा लंबा क़याम किया। 23वीं में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1/3 रात पढ़ा है। ये सुन्नत है, ये होनी चाहिए, सुन्नत को जिंदा करना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि आने वाले सालों में ऐसा किया जाए, आने वाले रमजान में इसके बाद के कि रातों में लंबी तरावी पढ़ाई जाए, लंबा तरावी ना भी सही तो 2-2 रकात करके इस तरह करके जमात से लंबा, ताकि सुन्नत को जिंदा किया जाए। 23वीं रात को 1/3 रात, 25वीं रात को अल्लाह के आपने 24वीं को नहीं कराई, 25वीं रात को आधी रात तक कराई, 26वीं को नहीं कराई, 27वीं को अपने घर वालों को भी ले आए, सबको जगा करके ले आए, और सहरी तक इतना लंबा क़याम किया कि साहबे कराम खुद कहते हैं कि हमें खदशा हुआ, अल्ताबुसर वगैरह कहते हैं कि हमें खदशा हुआ कि हमारी सहरी न चली जाए। और सहरी जानते हैं साहबे कराम बस 10-5 मिनट पहले करते थे, फजर के अजान से बस बहुत 10-5 मिनट पहले करते थे, आखिर वक्त में करते थे। वहां तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम कराई। तो लंबी नमाज़ें पढ़ना ये मुस्तहब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आखिरी अशरे की सुन्नत है कि लंबे क़याम हो, लंबी नमाजें हो, आदमी पढ़े। क़यामुल लैल भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, वो क़यामुल लैल करनी चाहिए आखिर अशरे की इस फजीलत को पाने के लिए। शब कद्र जो कि इसी आखिरी अशरे में है, और हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला ने इस आखिरी अशरे की फजीलत इसलिए इतना बढ़ा दी हो कि कुरान करीम इस आखिर अशरे की ताक रातों में नाजिल हुआ, और अल्लाह के रसूल ने कहा भी कि आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो, और आपने इत्काफ भी इसलिए किया, उसी लम्हे को पाने के लिए इत्काफ भी इस मकसद से किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर अशरे की ताक रातों को कहा, लेकिन आपकी जिंदगी में जो हुए, जो आपके साथ शब कदर के ताल्लुक से, उससे लगता यह है कि किसी एक खास रात में नहीं, वो बदलती रहती है। जिस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस बार मैं आखिरी अशरा में इत्काफ करूंगा, वो पहले बार जब आप आखिरी अशरे में इत्काफ किए थे, उस साल अबू सईद खुदरी कहते हैं, सही मुस्लिम से बुखारी दोनों में भी हदीस मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने जब कहा कि मैं इस आखिरी अशरे में बताया गया कि वो शब कदर है, और मैं देख रहा हूं कि पानी और मिट्टी में सजदा कर रहा हूं। खुद अबू सईद खुदरी बयान करते हैं उस रात बारिश हुई, सुबह अल्लाह वहां बारिश कुछ छत से, जो कच्चे छते थे, उससे कुछ पानी टपक करके आप जहां आप नमाज पढ़ाते थे उस मेहराब की जगह पर, सजदे की जगह पर
भी कुछ पानी गिरे और कुछ जगह भीगी, और जब आपने सुबह के फजर की नमाज पढ़ाई तो हमने आपके माथे पर उस मिट्टी और पानी कैसा देखे थे, आपके माथे पर लगे हुए थे। तो ये तो पहचान जो अल्लाह के रसूल ने बताई कि इस रात बारिश होगी, सुबह बिना शुआ के सूरज तुलू होगा, ज्यादा किरणें नहीं होंगी उसमें, ये भी हदीस में बयान की गई। तो इस हदीस से ये पता चला कि उस साल, जिस साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर अशरे का इत्काफ पहली बार किया था, उस साल ये मुबारक रात 21वीं रात में आई थी, शब कदर। अच्छा, हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस यानीस, वो भी सही मुस्लिम की हदीस है, वो कहते हैं कि 23वीं रात में बारिश हुई एक बार, और सुबह हमने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पे वो मिट्टी है जो पहचान बताई गई है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, ये भी सही मुस्लिम की हदीस, कि बाद साहब इकराम ने ख्वाब देखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साथी ने ख्वाब देखा कि वो आखिर अशरे में है, आखिर के 7 रातों में है, न 21 में न 23 में, आखिर के 7 दिनों में, 3 दिन छोड़ करके आखिर के ख्वाब बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, मुझे लगता है कि तुम में से अक्सर के ख्वाब मुत्तफिक है, तो तुम अब आखिर के 7 दिनों में देखो। उबई इब्न काब वगैरह कहते हैं कि 27वीं रात को है। अपने अपने तौर पे जिन्होंने जिस साल निशानी देखे उस रात को खास कर, तमाम हदीसों को अगर सामने रखे, तमाम हदीसें सही हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीसें हैं, जिसमें 21वीं रात का भी है, 23वीं रात का भी है, आखिर के 7 दिन का भी है, सब हदीसें सही है। सबको सामने रख करके यही नतीजा निकलता है कि ये रात बदलती रहती है, किसी साल 21 में हो सकती है, किसी साल 23, किसी साल किसी इलाके वालों के लिए, किसी साल किसी इलाके वालों के लिए। जाहिर सी बात है, कभी यहाँ 21वीं रात होती है तो किसी इलाके वालों के लिए 22वीं रात होती है, वो सो रहे होते हैं। किसी रात को हम जाग रहे होते हैं तो वो सो रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत है कि वो सबको मिल जाए, कभी किसी मुल्क वालों को, किसी इलाके वालों को, और जागने की नीयत से तो अल्लाह तबारक मिले ना मिले सवाब दे ही देगा। आयशा ने पूछा क्या करूं, दुआ भी खास है इसके लिए। ने पूछा कि मुझे पता चल जाए कि वो रात कौन सी है तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं, तो अल्लाह के फरमाई दिया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तो माफ करने वाला है, माफी को पसंद करता है, मुझे माफ कर दे। ये बहुत बड़ा असासा है मोमिन के लिए, अगर उसे माफी मिल जाए अल्लाह तआला की तरफ से, कामयाबी ही है। इंसान वो गुनाहों का पुतला है, लफ्ज़ उसमें होती रहती है, और अल्लाह अगर माफ कर दे, उसके गारंटी मिलेगी अल्लाह ने माफ कर दे तो बहुत बड़ी कामयाबी है उसके लिए। इसीलिए मुख्तसर से दुआ सिखलाएगी कि दुआ कसरत से पढ़े उन ताक रातों में जब जागे, और जागना, रातों को जागना है ये तकवा वालों के लिए, उस शब कदर के लिए जागे, ऐसे जागे। आम दिनों में रातों को जागना और उठ करके अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाना, ये तकवा वालों को मुत्तक़ियों की पहचान है। वबिलसहारिहुम कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन वबिलसहारिहुम यस्तग़फिरून, रातों को कम सोते हैं, सुबह को सहरी के वक्त अल्लाह से दुआएं करते हैं गिड़गिड़ा करके, ये मुत्तक़ियों की पहचान है। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफ़न व तमअन, उनके जिस्म ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं, बिस्तरों से, और वो अल्लाह तबारक व तआला को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते रहते हैं, रो कर गिड़गिड़ा करके पुकारते रहते हैं अल्लाह तबारक व तआला को। रातों को दुआएं करना, रातों को रोना, रातों को जागना शब बेदारी, ये ईमान का तकाजा है, मुत्तक़ियों की पहचान है। और अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं, मैंने पहली हदीस जो सुनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए, मैंने जो पहली हदीस सुनी उसमें देखिए क्या है, जो अफ्शुस सलाम व अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम सल्लु बिल लैलि वन नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। इसमें रातों के क़याम को अल्लाह के रसूल ने शामिल कर दिया। अफ्शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, वातिमुत ताआम, लोगों को खाना खिलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तों का धर्म रखो, रिश्तों को बचा के रखो, सिला रहमी करो, और सल्लु बिल लैलि वन नासु नियाम, रातों को उस वक्त इबादत करो, उस वक्त अल्लाह के सामने इबादत, अल्लाह से दुआएं करो, मग़फ़िरत और इबादत करो, नमाज़ें पढ़ो जिस वक्त लोग सो रहे हो, दुनिया सो रही हो। तदखुलुल जन्नत बिसलाम, बहुत आसानी के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। उस वक्त के बंदे और इंसान के रब्त में, बंदे और अल्लाह के बीच बहुत करीबी रब्त होता है। उसकी इबादत, उसकी दुआएं, उसकी आहें, उसके आंसू दिखावे से पाक होते हैं। जब रात की तन्हाई में कोई ना देख रहा हो, वो हाथ फैला दे आंखों में आंसू लेकर के अल्लाह के सामने, जाहिर सी बात है कोई दिखावा ना होगा। हमारे दिन की इबादत में, दिन की दुआओं में और दिन की सदाओं में दिखावा हो सकता है बनावट आ जाए, लोग देख रहे हो तो हो सकता है दिल में नियत आ जाए कि लोगों की नजर में हम ज्यादा जिक्र अस्कार वाले, तस्बीह वाले नमाज़ी कहलाए जाए। लेकिन जब रात का आखिरी लम्हा हो, जब गहरी नींद में दुनिया सो रही हो और अल्लाह का एक बंदा उठे, आंखों में आंसू लेकर हाथ फैला दे रात की तन्हाई में, अंधेरे में, तो उसमें दिखावा मुमकिन नहीं है। इसलिए रात को जागना, रात की क़यामुल लैल, इस रात की इबादत को इतना मकाम दिया गया है। सारा ट्रेडिशन हम लोगों ने बदल के रख दिया आजकल। रात को जागते हैं लोग, अब शब कदर में भले ना जागे सो जाए, रातों को जागते हैं, लेकिन वो पूरा अमल ही अलग होता है, न दुआ, न जिक्र अस्कार, न तिलावत, न नमाज, कुछ नहीं। गलियां आबाद है, ठीक है, चहल पहल रहती है पूरे रमजान, लेकिन कोई मस्जिद में आने के लिए या फिर और चीज करने के लिए पूरा महीना जागते, तो छोड़िए आखिर से पूरा महीना जागते, लेकिन वो जागना बेकार।
सिर्फ जागना ही है। कोई बैडमिंटन खेल रहा है, तब ये तो सोच रहे थे कि सिर्फ महानगरों में ये चीज है, लेकिन ये चीजें देहात तक फैल गई हैं। वहां भी रात रात जाग रहे होते हैं, लेकिन कोई लूडो खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है, मतलब मोबाइल लेकर के। मोबाइल कोई बुरी लागत नहीं है, अच्छी चीज है, अच्छी चीजें भी उसमें है, उसका जायज इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छी अच्छी तकरीरें उसमें होती है, कुरान वगैरह होते हैं, दिन की सीखने की बहुत चीजें आसानी होगी उसमें। लेकिन रात रात भर रमजान रातों में भी यही होगा, हमारी नौजवान बैठकर गेम खेलते रहता है। अब ये मस्जिद का चैनल बनना है, ये भी अच्छी चीज है। ये जो चैनल मस्जिद का बना हुआ यूट्यूब चैनल है, तकरीरें डाली जाती हैं, कोई बाद में सुन सके, कोई और सुनना चाहिए तो कुछ लोग यहाँ, कुछ लोग और सुन सकते हैं। ऐसे सारे लोग जो चैनल अच्छा चैनल बना के चलाते हैं, अच्छी चीजें भी है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत कम ऐसा था। ज्यादातर हमारे ये टीनेज का नौजवान ज्यादातर उसका इस्तेमाल गलत करता है, बैठ करके गेम टीम बना के खेलते रहते हैं, बैडमिंटन खेलते रहते रातों को। और सिर्फ यही नहीं कि रातों को जागने का सारा बदल दिया, रात को जाग रहे हैं लेकिन कोई मकसद नहीं, कोई इबादत का मकसद नहीं, अल्लाह को खुश करने का कोई मकसद नहीं, रात जाग रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। फजर के पहले जाकर के सो जाते हैं, कभी कभी सही दिखा करके, रातों को जाग रहे हैं। ये महीना तो आया था ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी इबादत कर सके, अपने आप को बख्शवा सके, लेकिन इसमें हमने खाने का महीना बना लिया। तो आम दिनों के मुकाबले में रमजान का बजट ज्यादा बनाते हैं कि ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा खाते भी हैं, फजर में ज्यादा खाते कि दिन भर भूखे रहना है, रात को शाम को ज्यादा खाते कि दिन भर भूखे थे। हम अपनी औरतों को भी इबादत का मौका नहीं देते, दोपहर से कितने गिर जाती है, उन अल्लाह की बंदियों को भी मौका देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी मुख्तसर होती थी, आम दिनों के मुकाबले में कम खाते थे। खजूर, छुहारा, पानी, यही शहरी में भी अगर सुनना था, लेकिन वो खजूर, छुहारा, पानी अगर नहीं तो भी नहीं। लेकिन हमने इतना दस्तरखान इतना वसी कर लिया कि हमें असर से लेकर मगरिब तक सिर्फ इफ्तारी खरीदने में लग जाता है, हमारी माँ को जोर से लेकर मगरिब तक सिर्फ इफ्तारी बनाने में लग जाती है। न वो तलाव कर पाते हैं, न नफली इबादत कर पाती हैं। इन्हें मौका दीजिए इबादत का, इफ्तारी मुख्तसर कीजिए, शहरी मुख्तसर कीजिए। और ये खाने का महीना नहीं है, सोते हैं दिन भर सोते रहते हैं, क्या क्या भाई, जब हमें मशक्कत हो ही नहीं पा रही है रमजान की, हम फजर बाद सोते हैं, उठते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। फजर बाद सोते हैं, कोई 2 बजे उठ रहा है, कोई 3 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, तो उसमें ना इबादत हो पा रही है, ना रोजे की मशक्कत कुछ हो पा रही है जिससे हमको सवाब मिले ज्यादा से ज्यादा। वो सारे बदल के रख दिए, खेल रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं और दूसरी लाहौ लाई वाले काम कर रहे हैं, लेकिन जो चीज होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। खाना भी खूब रहा है, सोना भी खूब हो रहा है, खेलना भी खूब हो रहा है, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए थी। पूरा एकदम शक्ल ही बदल के रख दी है रमजान में, रमजान के तकाजों की, रमजान की शक्ल की। तो इस पर गौर करना चाहिए, ये आखिर अशरा जाय ना होने दें। अब तो जो जाय हो गया, पहला अशरा दूसरा अशरा भी जाय होने को, अगर यही रवैया रहा तो उसको हम अपने आप को लगाम दें। बड़े लोग समझाएं, बच्चों को समझाएं, खुद भी उस पर अमल करें। बच्चे नकल करते हैं बड़ों की, बड़े भी हमारे कम नहीं, वो भी ज्यादातर से रात भर जागते रहते हैं, वो भी होटलों पे कहवा और गप हाँकते रहते हैं, चाय पीते, चाय सिगरेट वगैरह चलते रहते हैं, बातें चलते रहते हैं। रातों को जागना, जल्दी सो जाए, फजर में उठे, रात को या फिर जाग रहे तो कोई इबादत करें, रात को जागना वैसे भी मुश्किल होता है तो इबादत करें। तो मेरे भाइयों, ये आखिर अशरा जिसके ताल्लुक से इतनी फजीलतें आई हैं, उसको जाने न दें। एतकाफ बैठ जाएंगे भी बैठ सकते हैं, एतकाफ के अलावा क़यामुल लैल करें, तरावी भी क़यामुल लैल ही की एक शक्ल है। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जिसने क़याम किया, क़यामुल लैल हो चाहे तरावी हो, जिसने क़याम किया तो ईमान और इहतिसाब के साथ पिछले सारे गुनाह उससे बख्श दिए जाते हैं, वही छोटे छोटे गुनाह। एक ख्वाहिश जाहिर की, अगर रात को क़याम आदमी ना कर सके तो उसकी एक शक्ल और भी है। जब 23वीं रात को आधी रात तक, 25वीं रात को आधी रात तक अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई, क़यामुल लैल कराई, तो एक साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह के रसूल काश कि ये क़याम, ये लंबा जो आप दिखते फजर तक ले जाते आप, काश की पूरी रात इस तरह क़याम कराते, हमारी ख्वाहिश थी। तो अल्लाह के रसूल का इन्नहु मन क़ामा माल इमाम हत्ता यंसरिफा कुतिबा लहू क़यामुल लैल, इस तरह की हदीस है। जब उन्होंने कहा कि काश क्या पूरी रात क़याम कराते, तो उन्होंने कहा देखो इमाम के साथ अगर कोई क़यामुल लैल करता है, तरावी पढ़ता है, उसके सलाम करने तक आखिर तक अगर उसके साथ पूरा क़याम करता है तो उसकी पूरी रात की क़यामुल लैल लिखा जाता है, पूरी रात का क़याम लिख दिया जाता है। तो एक तरीका ये भी है रात की फजीलत को हासिल करने का। तो ये आखिर अशरे की फजीलत, जिसके एहतमाम को अल्लाह के रसूल, एहतमाम जिसका अल्लाह के रसूल भी करते थे, सहाबा भी करते थे, साहबियात भी करते थे, और आज भी कुछ लोग करते हैं। जो नहीं करते उन्हें करना चाहिए। आखिर अशरे को न जाने दें, अपने आप को बख्शवा लें, ज्यादा से ज्यादा नेकी करें, जिस जैसा भी शक्ल मुमकिन हो, जायज शक्ल, बिदात से बचे, और जो सुन्नत से साबित है उसी को इस आखिर अशरे में करें, वरना गुनाह सवाब के बजाय उल्टा हमें गुनाह मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के पास समझने की तौफीक दे। बारिल हम में से जो बीमार है उन्हें शिफायाब बना, जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना, जो साहिब औलाद है उनके औलाद की आंखों को ठंडक बना। बारिला इस रमजान में हमसे जो भी छोटी मोटी नेकियां हो रही हैं तो उन्हें कबूल कर, और मजीद आगे भी जो रमजान के दिन रह गए हैं, हमें ज्यादा